Yes, inheritance we had covered in the last lecture, and one more topic we had covered. One more topic we had covered. Namespace. Yes, very good. Okay, namespace we had covered. Okay, what is namespace? Inheritance. Now you know what is inheritance. Okay, what is namespace? Is organized to many class so that it can be easy to handle application. Very good. Okay. Yes. Now today we will going to learn new topic, that is delegates. Okay, namespace we had covered. Okay. Now yes, delegates. Okay, this is now again new concept. Okay, namespace is also new for you, delegates also new for you, then CLR.NET framework is new for you. Okay, the topics which are new for you, you have to concentrate more on these topics. Okay, because I will ask the question regarding all these topics in the MCQ. Clear? Okay. Now delegates, what is delegates? The delegates are similar to pointers to functions in C or C++. Okay, C sharp in the C sharp language, delegates are similar to pointers. Okay, similar to pointers to function in C or C plus plus language. Okay, जैसे आपने pointer you are used किया in the C plus plus language. Okay, तो in that pointer function को फंक्शन टू पॉइंटर वहाँ पे कंसेप्ट था. ओके, तो सेम है, बट आई थिंक नो वन हैव रिमेंबर्ड दैट. तो अगेन मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. ए डेलीगेट इज अ रेफरेंस टाइप वेरिएबल. ओके, ए डेलीगेट इज अ रेफरेंस टाइप वेरिएबल. रेफरेंस टाइप वेरिएबल मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस टाइप? वी हैड कवर्ड इन द डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स में हमने कवर किया था. व्हाट इज रेफरेंस टाइप मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस टाइप? There are three types of data types. Okay, value types, reference type, and pointer types. What is reference type? ये हमने cover किया था. Reference type variable. What is the meaning of reference type variable? Yes, be fast, students, please, please. Chalo. What is reference type? This is a basic. याद करो, what is reference type? We had covered ना, just अभी cover किया था in the starting C sharp basic C sharp languages में. What is variable types of data types? Reference type variable मतलब the way, what is a value type? Okay, what is value type variable? First of me tell, first tell of me what is value type variable क्या है? Value type, अगर हम लोग कोई वेरिएबल, इफ वी आर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल एज अ वैल्यू टाइप, मतलब क्या? यस और नो, टेल मी. अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज से नो, देन आई विल एक्सप्लेन. टाइम वेस्ट नहीं करना है. आ रहा है तो यस बोलो, नहीं तो नहीं. Yes, show a reference type variable holds memory instead of value. Yes, good. Okay, integer, float, double, all are the value type. Okay, if we are declaring the variable as a value type, then we can assigning values to the variable directly. Okay, and if we are declaring the variable as a reference type, then the variable contains the reference of any another मतलब the variable contains the address of any another variables. Like memory का जो address है वो हम लोग assign करेंगे in the reference type में. Okay, clear? Pointer is a reference type variable. Reference type variable मतलब क्या? We can assign the value. Okay, we can assign the value to the variable, but कौन सा value? The address of memory location. Okay, the address of memory location of another variable. Reference type, if we are declaring the variable as a reference type, then the value of that variable becomes the address of memory of any another variable. Okay, मतलब reference में we will assign the value, जो हम लोग assign करेंगे value वेरिएबल को, दैट इज एड्रेस होगा. क्या होगा? एड्रेस होगा, वैल्यू नहीं होगा. ओके, द रेफरेंस कैन बी चेंज एट रन टाइम. ओके, वी आर असाइनिंग द एड्रेस. ओके, हम लोग एड्रेस असाइन कर रहे हैं, तो मेमोरी एड्रेस असाइन किया, तो ऑब्वियसली द इट विल बी चेंज एट द रन टाइम. ओके,
Then what is delegates? The delegates are especially used for implementing events and the callback methods. Delegates are especially used for implementing events and the callback methods. All delegates are implicitly derived from the system.delegate class. Okay, what is delegates? बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? With example हम लोग करेंगे, then you will get the clear idea. The delegates, okay, all the delegates are implicitly derived from the system.delegate class. कौन सी class में? System.delegate class. ठीक है? When we will use the delegates, so we have to define these हेडर फाइल system.delegates, ठीक है? ऑटोमेटिकली वहां पे होगा, हमको उसको लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सी डिक्लेयरिंग द डेलीगेट्स. डेलीगेट्स मतलब क्या? टू कॉल दी फंक्शन, ठीक है? फंक्शन को कॉल करने के लिए वी विल यूज द डेलीगेट्स. ओके, फंक्शन को कॉल करने के लिए टू कॉल दी फंक्शन, ओके, वी विल यूज द डेलीगेट्स. फंक्शन को कॉल करने के हम लोग क्या यूज करेंगे? डेलीगेट्स. यहाँ पे क्या है? व्हाट इज डेलीगेट? डेलीगेट्स आर सिमिलर टू पॉइंटर्स टू फंक्शन. हम लोग फंक्शन को नाउ वी विल call the functions, ठीक है? एग्जाम्पल हम लोग कवर करेंगे, then you will get clear idea. Delegate declaration determines the methods that can be referenced by the delegates. Okay, delegates declaration determines the methods that can be referenced by the delegates. A delegates can refer to a method which has the same signature at that of the delegates. To call the function, simply अगर आप one word में explain करो तो what is delegate? Delegates are used to call the function. फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? डेलीगेट्स. ओके, टू कॉल दी फंक्शन मतलब मेथड, और फंक्शन मींस मेथड्स. ओके, मेथड को कॉल करने के लिए, मेथड को जो मेथड हम लोग बना रहे हो, मेथड को कॉल करने के लिए वी आर यूजिंग द डेलीगेट्स इन द C# लैंग्वेज. इन वन सेंटेंस यू कैन रिमेंबर दिस. डेलीगेट्स मींस टू call the method. Method मतलब function which has the same signature as that of the delegates. Okay, मतलब method name and delegate name both should be same. Okay, जो method हम लोग बनाएंगे उसका name and delegates दोनों का name should be same. Okay, for example consider the delegates हमने create किया. Step by step we will go so you can get the idea. Okay students, see public delegate. Okay, public delegate जैसे हम लोग function create करते हैं same delegate we can create. Okay, public is identifier. Public is identifier. Delegate is a keyword. Okay, delegate is a keyword. Integer is data type. Integer is data type. And my delegate is a name of the delegate. जैसे हम लोग function create करते हैं same. Okay, जैसे हम लोग function create करते हैं वैसे ही we can create the delegates and pass the argument. And pass the argument. Here we are declaring the delegate. हमने क्या किया? Delegate declare किया. How many arguments in the delegates? Only one argument is there. Okay, string s. Clear students? Okay, yes or no? Yes, ma'am. Yes. Again, I am repeating what is delegate. Delegate means delegate is used to call the function. Function को call करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? Delegates use करेंगे. Function means method. Function means method. The preceding delegates can be used to reference any method. See here, the preceding delegates can be used to reference any method that has a single string parameter and returns an integer type variable. Okay, the preceding delegates can be used to reference. ये जो delegates हमने यहाँ पे declare किया है my delegates नाम से, उससे हम लोग कोई भी methods कॉल कर सकते हैं. बट क्या होना चाहिए कि वो मेथड जो हमने बनाया है उसका पैरामीटर्स कैसे होना चाहिए? सिंगल पैरामीटर, वो भी कौन से टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का. एंड रिटर्न्स एन इंटीजर टाइप वेरिएबल. ओके, एंड रिटर्न्स द इंटीजर टाइप मतलब जो डेटा टाइप्स जो है वो एंड द पैरामीटर जो हम लोग पास करें बोथ शुड बी सेम होना चाहिए. ओके, क्लियर? तो यहाँ पे सिंटैक्स है फॉर डिक्लेयरिंग डेलीगेट्स डिक्लेयर करने के लिए. तो डेलीगेट्स मतलब यहाँ पे डेलीगेट्स रिटर्न टाइप इंटीजर, ठीक है. डेलीगेट नेम, हियर यू कैन डिफाइन एनी नेम्स आप डिफाइन कर सकते हो. एंड पैरामीटर लिस्ट जो यहाँ पे डिक्लेयर किया है वही है. एंड यस, पब्लिक इज आइडेंटिफायर. ओके, पब्लिक इज आइडेंटिफायर. अगर आप लोग उसको डिफाइन नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा, ठीक है. अगर आपको उसको पब्लिक बनाना है, इफ यू डिक्लेयर डेलीगेट पब्लिक देन एंड ओनली देन यू कैन कॉल एनी मेथड्स. ओके, अगर पूरे प्रोग्राम में कहाँ पे भी मेथड्स है उसका आपको कॉल करना है तो आप कॉल कर सकते हो. बट डेलीगेट कैसे होना चाहिए? पब्लिक. ओके, yes. Once a delegate type is declared, okay, once a delegate type is declared, a delegate object must be created with the new keywords. Okay, then एक बार हमने declare किया, then we will create the
object of that delegate using the new keyword. Okay, how to create object using the new keyword and be associated with a particular method. Okay, and be associated with a particular method. Examples I will show you next in the next slide. Okay, when creating a delegate, the argument passed to the new expression is written similar to a method call. Okay, but without the argument to the method. When creating the delegates, the argument passed to the new expression. When we are creating the object using the new keyword, at that time the expression is written similar to a method call. Okay, similar to a method call, but without the argument to the methods. ठीक है, पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं, देन आपको वो जो थियरी है वो सारा समझ में आएगा. ठीक है, यस, यहाँ पे हमने क्या किया है, सी यूजिंग सिस्टम इज अ हेडर फाइल, तो उसको हमने कुछ नहीं किया, जस्ट एज इट इज वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे होगा. यस, नाउ हियर वी आर डिक्लेयरिंग द डेलीगेट्स. हमने डेलीगेट्स यहाँ पे डिक्लेयर किया है. सी कहाँ पे किया है, बिफोर दी क्लास. ओके, बिफोर दी क्लास हमने क्या किया है, एक डेलीगेट डिक्लेयर किया है. व्हाई, बिकॉज यूजिंग द डेलीगेट वी कैन कॉल एनी फंक्शन. हम लोग कोई भी फंक्शन, कोई भी मेथड को वी कैन कॉल, कोई भी कॉल. इसके लिए हम उसको क्या किया, ऊपर डिक्लेयर किया. ऊपर डिक्लेयर किया, ऑटोमेटिकली इट विल बिकम्स पब्लिक. अगर पर्टिकुलर क्लास में उसको वी आर क्रिएटिंग द डेलीगेट, देन इट विल बिकम द प्राइवेट. ठीक है, तो डेलीगेट इंटीजर, that जो उसका सिंटैक्स है वो नंबर चेंज, नंबर चेंज इज अ डेलीगेट नेम एंड वन पैरामीटर इज देयर इंटीजर n. ओके, नाउ नेम स्पेस इज उसने बनाया है. ओके, ओके, देन इन दैट नेम स्पेस वन क्लास इज देयर, क्लास टेस्ट डेलीगेट. टेस्ट डेलीगेट इज अ क्लास. जैसे आप क्लास बनाते हो वैसे ही क्लास बनाया. इन दैट क्लास वन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड. ओके, नंबर इक्वल्स टू 10, दैट इज स्टैटिक टाइप. नाउ यू नो व्हाट इज अ स्टैटिक. ओके, होप के सबको पता होगा व्हाट इज स्टैटिक टाइप क्या है. अगेन हम लोग उसको रिपीट नहीं करेंगे. स्टैटिक इंटीजर नंबर, नंबर इज अ इंटीजर टाइप, बट उसको कैसे डिक्लेयर किया है, स्टैटिक. द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज 10. ओके, नाउ यू सी हियर पब्लिक स्टैटिक इंटीजर ऐड नंबर. व्हाट इज दिस, दिस इज अ मेथड. ओके, दिस इज अ मेथड. ये मेथड हमने डिक्लेयर किया, बट इन विच कौन से क्लास में, टेस्ट डेलीगेट क्लास में वी आर क्रिएटिंग द वन मेथड दैट इज ऐड नंबर. ओके, ऐड नंबर मेथड क्रिएट किया है एंड वी हैव पासिंग वन आर्गुमेंट इंटीजर p. इंटीजर p. ओके, इंटीजर p हमने वापस उसको क्या किया है, एक वेरिएबल दिया है एंड वो मेथड है. ऐड नंबर इज अ मेथड फंक्शन. क्या हो रहा है उसमें, नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस p होगा एंड रिटर्न दी नंबर. ओके, जब हम व्हेन वी विल कॉल दिस मेथड तो क्या होगा, जो नंबर है उसको नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस p करेगा. ओके, p मतलब क्या, व्हेन विल पास द वैल्यू p का जो हम वैल्यू पास करेंगे उसको वो 10 में ऐड करेगा. ठीक है, क्योंकि नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 10 है, तो 10 प्लस p करेगा. व्हाट इज p, जब हम लोग व्हेन वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट एट दैट टाइम वी विल पास द वैल्यू ऑफ p. ठीक है, देन अनदर सेकंड मेथड इज क्रिएटेड हियर, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर mult num. मल्ट नम करके एक मेथड बना. यू कैन गिव एनी नेम टू मेथड्स. ओके, एंड एक सेकंड वेरिएबल पास किया इंटीजर q. ओके, उसमें लॉजिक दिया है नंबर इक्वल्स टू नंबर इनटू q एंड रिटर्न द नंबर. सो क्या किया है, वन क्लास इज क्रिएटेड, इन दैट क्लास वन वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड. ओके, एंड टू मेथड्स आर डिक्लेयर्ड. कौन सा मेथड डिक्लेयर किया है, दो मेथड्स. कौन से, ऐड नंबर एंड मल्टी नंबर. एंड ऐड नंबर एंड मल्टी नंबर में का जो मेथड्स है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. ओके, एंड दोनों में क्या क्या है, वन पैरामीटर्स है. एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव डिक्लेयरिंग द वन डेलीगेट. ओके, डेलीगेट क्या डिक्लेयर किया है, डेलीगेट इंटीजर टाइप का डेलीगेट है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डेलीगेट, नंबर चेंज एंड वन पैरामीटर वी हैव पास. ओके, इतना समझो और कुछ न्यू नहीं किया है, जस्ट कॉमन क्लास क्रिएट करते हैं वैसे वी हैव क्रिएटेड द क्लास क्रिएटिंग टू मेथड्स. ओके, एंड पब्लिक स्टैटिक इंटीजर गेट नंबर. ठीक है, और एक मेथड डिक्लेयर किया है गेट नंबर करके, जिसमें रिटर्न नंबर रिटर्न होगा. ठीक है, वन मोर मेथड इज दैट, द नेम ऑफ दैट मेथड इज गेट नंबर, बट उसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया है, जस्ट नंबर जो है इट विल बी रिटर्न. ओके, तो थ्री मेथड्स इज दैट, ऐड नंबर, मल्टी नंबर एंड गेट नंबर. ओके, थ्री मेथड्स आर दैट, ऐड नंबर, मल्ट नंबर एंड गेट नंबर. ओके, वो हो गया क्लास. नाउ दिस इज अ मेन मेथड, स्टैटिक वॉइड मेन. ओके, ये जो मेन है ना, इट विल बी इनबिल्ट है. ठीक है, आपको उसको लिखने की जरूरत वो वहाँ पे होगा. व्हेन यू विल ओपन योर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो कंसोल एप्लीकेशन ओपन करोगे तो इट विल बी देयर बाय डिफॉल्ट. ठीक है, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है. आप जस्ट क्या करोगे, बिफोर द मेन यू विल क्रिएट द क्लास
ओके, बिफोर मेन के पहले आप क्या करोगे, ये क्लास क्रिएट करोगे, यूजिंग सिस्टम इज ऑल्सो देयर, दिस हेडर फाइल इज ऑल्सो वहाँ पे होगा, उसके नीचे आपको क्या करना है, जस्ट डेलीगेट डिक्लेयर करना है। नेम स्पेस ऑल्सो ऑलरेडी वहाँ पे होगा, वन नेम स्पेस इज देयर इन बिल्ड, जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो उसमें ऑलरेडी होगा, तो आपको ये भी नहीं लिखना है, जस्ट आपको डेलीगेट डिक्लेयर करना है, क्लास बनाना है, मेक दी मेथड्स, ओके ओके, देन मेन भी वहाँ पे होगा, देन इनसाइड द मेन, ओके, इनसाइड द मेन फंक्शन व्हाट विल बी डन, यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट। आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। तो नंबर चेंज NC1, ओके, नंबर चेंजर NC1, तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है, सी डेलीगेट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ओके, ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है, डेलीगेट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ डेलीगेट, नंबर चेंजर, ओके, तो नंबर चेंजर NC1, ओके, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो वैसे NC1 इक्वल्स टू न्यू नंबर चेंजर ऐड नंबर, ओके। व्हाट इज ऐड नंबर, ऐड नंबर इज अ मेथड नेम, व्हाट इज ऐड नंबर, ऐड नंबर इज अ मेथड नेम। एक डेलीगेट्स जो है हमने बनाया, व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट delegates and passing the method name in that object. Then there is also one more method is there, so we are creating the second object for the same delegates, okay, यहाँ पे same delegate का हम लोग we are creating the new object NC2, you can give here any name, okay, object के लिए you can give any name, equals to new number change and हमने क्या पास किया है, सेकेंड मेथड नेम मल्ट नंबर, ओके, यस। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करें, वी आर कॉलिंग दी जो मेथड्स जो है उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कॉल करें, थ्रू दी डेलीगेट्स, हियर वी आर पासिंग दी मेथड्स नेम इनटू दी डेलीगेट्स। यहाँ पे हमने क्या किया, पासिंग दी डेलीगेट्स नेम टू दी मेथड्स नेम टू दी डेलीगेट्स, एंड यहाँ पे हमने जस्ट क्या किया, NC1, व्हाट इज NC1 इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ डेलीगेटर, ठीक है। NC1 इक्वल्स टू पास 25, व्हाट इज 25, 25 क्या होगा, इट इज अ वैल्यू ऑफ P, 25, व्हाट इज अ 25, इट इज अ वैल्यू ऑफ P, ओके, मतलब वो P का वैल्यू क्या लेगा, n इक्वल्स टू n प्लस P, मतलब 10 प्लस 25, ओके। कंसोल डॉट राइट लाइन वैल्यू ऑफ नंबर 0 गेट नंबर, ओके, गेट नंबर मेथड जो है वो यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं, उसको डेलीगेट में डालने की जरूरत नहीं है, वाई, बिकॉज उसमें कुछ पास नहीं करना है, जस्ट हम लोग उसको प्रिंट रिटर्न करवा रहे हैं। देन सेकंड ऑल्सो हमने जो है ऑब्जेक्ट उसके में भी हमने वैल्यू पास कर दिया, NC2 ऑब्जेक्ट नेम एंड ब्रैकेट में 5, व्हाट इज 5, 5 इज द इंटीजर क्यू, जो हम 5 का वैल्यू डालेंगे किसको असाइन हो जाएगा, इंटीजर क्यू को। देन नंबर इक्वल्स टू नंबर इनटू क्यू, व्हाट इज नंबर 10, 10 इनटू 5, 10 इनटू 5, ठीक है। एंड कंसोल डॉट राइट लाइन उसे हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, एंड लास्ट में यू हैव टू राइट कंसोल डॉट रीड की, व्हाट इज कंसोल डॉट रीड की, फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, ओके, फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। अब पूरा प्रोग्राम लिख रहे हो, करेक्ट है, ठीक है, बट अगर इफ यू विल नॉट राइट द कंसोल डॉट रीड की नहीं लिखोगे तो आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा। हर एक प्रोग्राम के बाद आपको लिखना है कंसोल डॉट रीड की, क्लियर। हियर यू कैन सी हम लोग जनरली फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, फंक्शन नेम से, बट हमने क्या किया यहाँ पे, वी आर कॉलिंग द फंक्शन यूजिंग द डेलीगेट्स, हमने क्या किया, डेलीगेट्स यूज करके फंक्शन कॉल किया। समझ में आया, व्हाट इज डेलीगेट, द डेलीगेट इज यूज्ड टू कॉल द फंक्शन, फंक्शन जो हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे दोनों जो मेथड्स जो है, फंक्शन मींस मेथड, बोथ मेथड्स आर डिफरेंट, दोनों मेथड्स डिफरेंट है, ओके, बट दोनों मेथड्स को हम लोग किससे कॉल करें, सिंगल डेलीगेट से। तो व्हेन यू आर क्रिएटिंग मल्टीपल मेथड्स, ठीक है, मल्टीपल मेथड्स क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको कॉल कर सकते हो यूजिंग द डेलीगेट्स मेथड से यू कैन कॉल, बट व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, क्या होना चाहिए कि डेलीगेट्स का जो डेटा टाइप है दैट, एंड जो मेथड्स है उसका डेटा टाइप, ओके, एंड जो आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स जो है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी सेम, क्लियर, क्या सेम होना चाहिए, मेथड्स एंड डेलीगेट्स डेटा टाइप्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, ओके, डेलीगेट्स एंड मेथड्स आर्ग्यूमेंट्स, डेलीगेट्स एंड मेथड्स आर्ग्यूमेंट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम होगा तो वी कैन कॉल द फंक्शन यूजिंग द डेलीगेट्स, एंड वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स, हम लोग क्रिएट करें किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट के लिए, डेलीगेट्स का, हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करें, जनरली वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, ओके, जनरली वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, बट ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर रहे हैं बट किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, डेलीगेट्स का, एंड इन दैट ऑब्जेक्ट वी आर पासिंग द मेथड्स नेम, ओके, इन दैट
ऑब्जेक्ट्स में हम लोग क्या करें, वी आर पासिंग दी मेथड्स नेम, हमने उसको पास किया। तो ये क्या, यहाँ पे जो डेफिनेशन था, व्हाट इज डेलीगेट्स, the preceding delegates can be used to reference any method. Okay, any method, कोई भी method को हम लोग कॉल कर सकते हैं। delegate can refer to a method which has the same signature as the delegates. Okay, a delegate can refer to a method, कोई भी methods को हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, which has the same signature. What is the meaning of signature? जो उसका पैरामीटर्स एंड डेटा टाइप्स दोनों सेम होना चाहिए, मेथड्स का एंड डेलीगेट्स का, वो हम लोग मेथड्स कॉल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द सिग्नेचर, ओके, एज द टर्म डेलीगेट्स। क्लियर? नाउ आप अभी ये थियरी पढ़ोगे आफ्टर द प्रोग्राम, देन आपको समझ में आएगा व्हाट इज डेलीगेट। ओके, यहाँ पे वन मोर है कि वंस ए डेलीगेट टाइप इज डिक्लेयर्ड, once a delegate type is declared, a delegate must be created with the new keywords जो हमने किया and be associated with a particular methods. Okay, once a delegate type is declared, once delegate type is declared, यहाँ पे हमने delegate type declare किया, ठीक है। A delegate object must be created with the new keyword. A delegate object is created with the new keywords and be associated with the particular methods and be associated with the particular methods. Okay, हमने यहाँ पे associate किया, क्या किया, just associate करने के लिए we are passing the methods name in the brackets. Okay, add number and mult number both are the methods name. Okay, तो ये जो sentence है now अभी आपको समझ में आएगा what is the meaning of this sentence. When creating a delegates, okay, when creating the delegates, the argument passed to the new expression is written similar to a method call. ठीक है, when creating a delegates, the argument passed to the new expression is written similar to the method call, but without the argument to the methods, means ये वाला, ठीक है, calling the methods using the object। हम लोग methods तो call करें, but कैसे करें, using the delegates object से। Okay, calling the methods using the delegates object, we are calling the methods, ठीक है, हम लोग मेथड्स कॉल करें, जो मेथड, कौन सा मेथड, NC1 NC2 में जो पास है, NC1 में व्हाट इज द मेथड पास, ऐड नंबर, एंड NC2 में कौन सा मेथड पास किया है, मल्ट नंबर। नाउ क्लियर व्हाट इज डेलीगेट? यस और नो? यस और Yes, नो? ma'am. ओके, okay, now we will tell what is delegate. This is very important concept. Okay, why? Because this is a new for you. Okay, delegates is पूरा new concept है आप लोगों के लिए। अगर आपने pointers to function कुछ पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, अगर तो अगर किसी को याद है तो C++ language में। Yes, what is delegate? Who will give the answer? What is delegate? What is delegate? Delegate are single pointers. Yes, sorry, मुझे नहीं सुनाई दिया। Yes. When delegates are similar to pointers. Okay, okay. आप ऐसे भी बोल सकते हो। Yes. और कोई आंसर देगा? और कोई बताएगा? जो आंसर दे दैट इज करेक्ट। ओके, इट इज करेक्ट। और कोई बताएगा व्हाट इज डेलीगेट? यस स्टूडेंट्स, इतना मैंने एक्सप्लेन किया। चलो, एकदम इजी। मैंने जो प्रोग्राम्स यहाँ पे जो डाला है पीपीटीज में, इट इज वेरी इजी। ओके, वो आपको देख के समझ में आएगा। जब भी आप प्रिफर करोगे उसको, आपको देख के समझ में आएगा व्हाट इज डेलीगेट। हर एक कंसेप्ट मैंने ऐसे इजी बना के आपको प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम इजी करके दिया है मैंने। इतना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम नहीं बनाया मैंने कोई भी टॉपिक के लिए। यस, व्हाट इज डेलीगेट्स? मुझे और आंसर चाहिए। व्हाट इज डेलीगेट्स? यस, ओके, फंक्शन कॉल कर सकते हैं डेलीगेट यूज करके। यस, गुड। डेलीगेट्स फंक्शंस को कॉल करना। ओके, गुड। ओके, यस। हाउ टू क्रिएट डेलीगेट्स? हाउ टू क्रिएट डेलीगेट्स?
how to create delegate, how to create delegate students, what is the syntax for creating delegates? I will ask this question in MCQ, the syntax for delegates. Correct, four syntax, four options will be there. You have to choose correct option. What is the syntax for creating delegates? Yes, I am waiting, students. What is the syntax? The screen is seen to you, ना? Screen में लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे PPT में दिख रहा है आपको. What is the syntax? Delegate. Okay. First of all, you have to write delegate. Delegate is a keyword. Okay. Then return type. Okay. Then delegate's name. जो भी आपको delegates का name देना, you can give the delegate's name and pass the parameter list. Same as function. No change. Function भी ऐसे declare करते हैं. Methods, functions are declaring same in this way. But what is the यहाँ पे आगे आपको क्या लिखना है? Delegates. Okay. Delegates आपको लिखना है. Delegates. Okay. Delegate is a keyword. Then write the return type. Okay. Delegate name and parameter list. Okay. And one more thing you have to remember regarding delegate, the method name. Okay. Method name, method type and parameters जो है that similar to delegates name and delegates types and delegates arguments. Okay. जो delegates create करे, that the data type of the delegates. Okay. Data types and arguments parameters. Okay. वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. इफ अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करी वन मोर मेथड, कोई भी वन मेथड्स में डिक्लेयर करी पब्लिक फ्लोट करके और मेथड डिक्लेयर करी एंड पासिंग दी वन पैरामीटर, तो उसको हम लोग वी कैन नॉट कॉल दैट मेथड यूजिंग द डेलीगेट. व्हाई? बिकॉज द जो उसका डेलीगेट का टाइप है दैट इज इंटीजर एंड जो मैं मेथड डिक्लेयर करूँ दैट टाइप ऑफ दैट मेथड का टाइप फ्लोट है, तो जो डेटा टाइप है इट इज डिफरेंट, तो वी कैन नॉट कॉल दैट मेथड. हम लोग डेलीगेट से वी कैन कॉल ओनली दैट मेथड्स यूजिंग डेलीगेट कि जिसका डेटा टाइप्स एंड आर्ग्यूमेंट्स नेम क्या होना चाहिए. आर्ग्यूमेंट्स जो है टाइप, ये आर्ग्यूमेंट्स जो है पैरामीटर्स, यू कैन से पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स, जो वर्ड्स आपको यूज करना है कर सकते हो, वो क्या होना चाहिए? बोथ आर सेम. ठीक है. दैट इज अ कंडीशन. ये कंडीशन है. यू शुड रिमेंबर स्टूडेंट्स. ओके. इन एवरी टॉपिक में मैं आपको बोलूँ ये इंपॉर्टेंट है. यू शुड रिमेंबर फॉर एमसीक्यू, यू शुड रिमेंबर फॉर एमसीक्यू, तो वो आपको याद रखना है. आई विल नॉट गिव यू द इम्पोर्टेंस एट द लास्ट मोमेंट. ठीक है. लास्ट मोमेंट में आपको एमसीक्यू का जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं दूंगी, क्योंकि मैं एवरी लेक्चर्स में जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन होगा, तो प्लीज नोट डाउन. ओके. प्लीज नोट डाउन करके रखो. क्लियर? डेलीगेट्स में अगर नो डाउट देन we will cover the new topic. Clear, delegates? Okay. Yes, ma'am. Yes. Chalo. Namespace and delegates both are new. Namespace is easy. Delegates is also easy, but you have to remember the syntax for creating delegates, then how to create objects of the delegates, and how to call methods using that delegates. Okay. तो आपको ये जो चीजें regarding delegates वो याद रखना है. रट्टा नहीं मानना है. कभी भी रट्टा मत मारो. इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन नॉट ऐसे उसको हम लोग रट्टा मारते हैं ना, वैसे नहीं कर सकते हम लोग. ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट स्टेप बाय स्टेप्स आपको याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर द हेडर फाइल वी हैव टू क्रिएट दी वी हैव टू डिक्लेयर दी डेलीगेट्स. हमको डेलीगेट डिक्लेयर करना है. देन हाउ टू डिक्लेयर डेलीगेट, कैसे डिक्लेयर करेंगे, ऐसे समझ के याद रखो. कैसे डिक्लेयर करेंगे डेलीगेट? राइट दी डेलीगेट कीवर्ड्स. ओके. देन राइट दी डेटा टाइप्स. Okay, then write the delegate's name and open the bracket and pass the arguments. Okay, then फिर क्या करना है? जैसे as usual you are creating the class, create the class. ठीक है. Then methods, जो भी methods आपको बनाना है methods बनाओ. ठीक है. Then what you will do, क्या करोगे उसके बाद आप कि मेन मेथड जो है, ठीक है, इन द मेन मेथड में अगर इफ यू वांट टू कॉल द मेथड्स, आपको मेथड्स को कॉल करना है मेन मेथड्स में, तो आप क्या करोगे? यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट डेलीगेट्स. ठीक है. जो डेलीगेट्स हमने डिक्लेयर किया उसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे
जितने मेथड्स को कॉल करना उतने मेथड्स के लिए यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स. ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव डिक्लेयर्ड 5 मेथड्स, हमने 5 मेथड्स डिक्लेयर किया है. ठीक है, हम लोगों ने 5 मेथड्स डिक्लेयर किया है इन द क्लास में. ठीक है, अगर आपको 5 मेथड्स को कॉल करना है तो यू हैव टू डिक्लेयर द 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डेलीगेट्स. अगर एक ही ऑब्जेक्ट करोगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर जो है वो प्रॉपर्ली नहीं आएगा. तो क्या होगा, जो लास्ट मेथड्स जो आप कॉल करोगे एक ही ऑब्जेक्ट से, द लास्ट मेथड का जो आंसर है दैट विल बी डिस्प्ले. ओके, तो वो ओवरराइट हो जाएगा. सो यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स. जितने भी आप मेथड्स कॉल करना है, यू हैव टू क्रिएट द इतना ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट करना है. क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स. ओके, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, जैसे क्रिएट करते वैसे ही डेलीगेट का नेम इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट नेम एंड ब्रैकेट. हाँ, यस, When delegates का एक बार syntax show करो. शो करो सिंटैक्स. ओके, एक मिनट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोग्राम ही देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट द डेलीगेट. ठीक है, वेयर कहाँ पे करना है, आफ्टर द हेडर फाइल. ठीक है, हेडर फाइल के नीचे यू हैव टू क्रिएट द डेलीगेट्स. व्हाई हियर, बिकॉज अगर ये हमने क्या किया है, क्लास के बाहर डिक्लेयर किया, सो इट इज कॉमन. होल प्रोग्राम के लिए वो क्या होगा, कॉमन होगा. ओके, तो यू कैन कॉल एनी नंबर ऑफ मेथड्स को कॉल कर सकते हो. इसलिए हमने उसको पर्टिकुलर क्लास में कोई डिक्लेयर नहीं किया, उसको हमने कहाँ पे किया, कॉमन ऊपर डिक्लेयर किया है. जैसे आप लोग करते थे ना सी लैंग्वेज में, आफ्टर द हेडर फाइल कुछ मैक्रो वगैरह यू आर डिक्लेयरिंग द मैक्रो. ओके, जो कॉमन था पूरे उसमें, तो सेम वैसे ही हम लोग डेलीगेट्स कहाँ पे डिक्लेयर करें, आफ्टर द नेम स्पेस. ओके, डेलीगेट सॉरी आफ्टर द हेडर फाइल डिक्लेयर करो डेलीगेट्स. राइट द डेलीगेट इज अ कीवर्ड, डेटा टाइप. जो भी नेम देना यू कैन गिव द नेम. डेलीगेट्स का नेम कोई भी दे सकते हो. ठीक है, वो उसको कोई मैटर नहीं करता, बट ठीक है, जो भी नेम देना यू कैन गिव द नेम फॉर डेलीगेट्स. देन आर्गुमेंट पास करो. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मेक वन क्लास. जैसे आप क्लास बनाते हो, क्लास बनाओ अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स. मेक दी फंक्शन मेथड्स. ओके, अकॉर्डिंग आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको बनाना है मेथड्स वगैरह, वो मेथड्स बनाओ. अगर आपको वो मेथड्स को यूजिंग डेलीगेट्स आपको कॉल करना है, ठीक है, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट दी ऑब्जेक्ट. इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे डेलीगेट्स का. व्हाई, बिकॉज वी आर कॉलिंग द मेथड्स यूजिंग द डेलीगेट्स. ओके, सो नंबर चेंजर is a delegate name. Object create किया, object is always creating using the new keywords. ठीक है, this is a syntax, मतलब नंबर चेंज का ही syntax लिखना है आपको, नेम. देन पास दी मेथड नेम, जो आपको कॉल करना है मेथड उसका नेम पास करो. ओके, दो मेथड आपको ये कॉल करना है, तो क्रिएट दी 2 ऑब्जेक्ट्स. 3 मेथड्स है, 4 मेथड्स है, जितना भी मेथड्स है, फॉर एवरी मेथड्स यू हैव टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट्स. आपको ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना है. ठीक है, अगर ओनली NC1 में यहाँ पे NC1 एक ही, इफ आई एम क्रिएटिंग ओनली वन ऑब्जेक्ट हियर NC1, ठीक है, उसमें ऐड नंबर पास करे. ठीक है, तो वो क्या करेगा, एवरी टाइम ऐड नंबर ही करेगा. तो यहाँ पे अगर मैं 2 टाइम्स उसको कॉल करूंगी तो भी वो क्या करेंगे, एक ही करेगा. तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऐड नंबर मेथड आई एम पासिंग हियर. सो जितना मेथड्स है, हर एक मेथड्स के लिए यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द डेलीगेट्स. ये आपको याद रखना है. देन कैसे उसको लिखोगे, कॉलिंग मेथड्स कैसे कॉल करोगे, जस्ट राइट दी ऑब्जेक्ट नेम. मेथड नेम नहीं लिखना है, जस्ट राइट दी ऑब्जेक्ट नेम. मेथड नेम क्यों नहीं लिखना है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी पासिंग इन द डेलीगेट्स में पास किया हुआ है. ठीक है, रिजॉइन करो स्टूडेंट्स. ठीक है, तो NC1 ये फर्स्ट कॉल किया है मेथड. सेकंड मेथड कॉल, उसको देन प्रिंट करवाओ. जैसे प्रिंट करवाते हो वैसे ये वैल्यू ऑफ नंबर 0 क्या है, ये हम लोग देखेंगे विद द प्रैक्टिकल के साथ. ठीक है, जस्ट प्रिंट ऐप लिख दो, सेम वैसे ही ये है console.writeLine. ये अभी नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ये लाइन आपको समझ में आएगा. बट राइट लाइन इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट. ओके, देन सेकंड उसको कॉल किया हुआ है. ओके, सेकंड मेथड कॉल किया है. कैसे कॉल किया है, ऑब्जेक्ट थ्रू. अगेन ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल करना, मेथड का नाम से कॉल नहीं करना है. ओके, वी आर कॉलिंग द मेथड्स using delegates object. Why? Because delegates are used to call the object. Delegates की यूज होता है, सॉरी, used to call the methods. Methods को कॉल करने के लिए delegates यूज होता है. So here we are writing the